हाय और गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है और आज हम जिस होटल में ये JW हेरिटेज करके होटल है उसमें रह रहे थे, तो वहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं, आखिरी दिन है। और हमने सोचा कि 2 दिन और जब सैटरडे संडे रह रहे हैं तो और किसी नए होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ का एम्बियंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं और वहाँ का नया होटल का चेक इन जो है वो 2 बजे का है। तो अभी हमारा प्लान ये है, अभी 10 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट आराम से करेंगे 1-1.5 घंटा और उसके बाद फिर थोड़ा साइकिल चला के घूम फिर के फिर होटल में जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये होटल की रूम कैसी है। ये होटल भी बहुत अच्छा था और इसकी रूम देखिए। तो ये है इसका लिविंग एरिया और यहाँ पे सिट आउट एरिया कम बालकनी। और ये सामने से मेन रोड है, नीचे पूल भी है, स्विमिंग पूल। हमने अपनी दोनों दिन की दोनों शामें जो है वो इवनिंग टाइम यहाँ पे बैठ के स्पेंड किया हुआ है, चाय पीते पीते या फ्रूट्स खाते खाते। और ये बेड के सामने वाला एरिया काफ़ी स्पेशियस रूम है और अच्छे से डेकोरेट की हुई है। सिंपल है, ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश माहौल है। और वॉशरूम भी दिखा देता हूँ आपको। वेस्टर्नाइज्ड वॉशरूम है, वहाँ पे बाथरूम, नहाने का एरिया और यहाँ पे टॉयलेट और यहाँ पे बेसिन। रूम से निकलते ही बाहर अगर आएंगे तो रूम के पीछे साइड ऐसा ओपन खेत है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी कुछ हॉस्टल जैसा है और यहाँ पे ओपन फार्म्स है, आप देख सकते हैं। तो ये था छोटा सा टूर हमारे रूम का। और मैथिली कुछ कहना चाहेगी? It was pleasant stay. Thank you. Hello friends, so I am going to introduce you to the owner of this cafe, Mr. Windsor, and actually his father is the owner of this cafe, and but he is going to tell us the philosophy of this cafe, because the whole family has they are serving food since 1989 and it's with pure love that they have come up with this passion. So let me introduce you to Mr. Windsor. Hi, I'm Windsor and my father owns this place, and it's a cafe in Goa and we opened from 89 December 3rd. We complete our 30th season this year. Cool. And it's been an amazing journey over the years, from just two tables and 8 chairs to what we are right now. Wow. We do breakfast every day from 8:30 to 3:30, and we love serving people. We love serving happy people, and we speak about having just simple food from fresh ingredients. Yeah. That's what we're all about, and we love doing our job, and we love our job. We're passionate about our job, and we love serving customers like you all who are happy. And that's the day. And you are from this Anjuna Yeah, itself? local. I'm the local from Anjuna. Okay. And this is where we are born. And I'm a Goan. Yeah. Basically, I'm born in Bombay, but brought up in Goa. Oh. Yesterday when we were talking about bicycle tour, how did you come up with those names of those villages? Have you traveled there? I've traveled to those villages around, and I love the villages myself. Okay. It's a typical Goan village, typical Goan houses, and typical Goan culture. Okay. So I think that is why I suggested you the places. Okay. How did you come up with this core philosophy, like keep your VIP badges outside? So we had some instances, a couple of seasons, people come and tell us who they are, what they are, but it doesn't work like this. We want to serve people who enjoy breakfast and have people who are happy. Yeah. So that's what we are all about. Oh. So we prefer serving people who are simple, who want a good breakfast, than serving somebody who has an attitude. Yeah. We don't want to entertain something like this. Nice, nice. The entire ambience is like travel friendly, like those Tibetan flags, and like even normal traveler, any traveler would perfectly relate with your philosophy of the restaurant. The thing is, basically when they walk in, I want them to have a happy feeling that they are in a village and they come on a holiday. They're not sitting in some fine dining place. Yeah. They're not having some high-end menu.
It's just simple food, simple setup, clean, and you pay what you eat and you enjoy your food. That's all about it. The recipes that you have are totally Self-curated. It's self-curated menu Okay. and self-prepared. So before we give you on the menu, we've been working over it, how we cook it, how we prepare Okay. it, and that's how it comes on the menu. and they are pure Goan recipes or like all over the world. It's a continental menu from Okay. all over the world, but people who work with it are all Goans. Okay. We have no outsiders. Huh. Just simple Goan people, from housewives to just simple people working with us. Okay. And how we do that. Nice. Thank you. And one last question was, yesterday when I was taking a vlog, I was explaining to my viewers that the juices here are like pure organic fruits and no ice, no water. It's just the taste of the fruit. Yeah, it's always served like all the machine we have are supposed to be. Thank you. Have a nice day. All the machine that we have supposed to be for every fruit has its own machine. We don't mix the fruits in a machine, and the fruits are all organic and there's no sugar, no water, no ice. Yeah. So it's freshly squeezed at that very time for you to serve your Oh, that's so sweet of you for giving us your time. pleasure, Avinash. And Thank you. we would love to come here again and again, and I would request my viewers to come here, and whenever they are in Anjuna they should come and visit this place. Thank you. This is our 30th season, so Yeah. thank you very much. Oh thank you. Thank you, Avinash. Thanks a lot. Pleasure. अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट मैंने आपको कहा था ऑरेंज बूम कैफ़े में एज़ यूजुअल, जो हमारा फेवरेट कैफ़े बन चुका है अभी ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और इतना टाइम स्पेंड किया, आराम से ब्रेकफास्ट किया, इतना ब्रेकफास्ट किया कि वो लंच के बराबर ही था। तो अभी वो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद हमने, क्योंकि हमारा चेक इन टाइम नए होटल में होटल सोनेट ट्री हाउस सोनेट करके है, तो वहाँ पे चेक इन टाइम 2 o'clock का था, 2 बजे दोपहर के। तो हमने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम वहाँ पे बिताएंगे कैफ़े में और फिर फटाक से साइकिल से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी शांत सी दोपहर है और ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम निकले। अभी हम लोग निकले हमारे होटल की तरफ। रास्ते में हम लोग रुके हैं एक शॉप के बाहर। मैथिली को कुछ टी शर्ट्स और टॉप्स ख़रीदने थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जैसे गोवा में होता है। इधर घूमने के लिए थोड़े से 1-2 चीज़ें चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो ये साइकिल मैंने रोकी है और सब बोरिया बिस्तर बांध के हम निकले साइकिल पे। और ये जो नया होटल है ट्री हाउस सोनेट करके, बहुत ही फ़ोटोज़ में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रूम के अंदर जाने के बाद मैं आपको रूम की टूर दूंगा और होपफुली जैसा देखा है फ़ोटोज़ में वैसा ही है वो। और उसको एक मेरी एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि रूम को लग के ही बाहर बालकनी है और बालकनी में ट्रीज़ वगैरह हैं, ग्रीनरी इमीडिएटली, और सिट आउट एरिया है। तो वो रूम मैं देखने के लिए बहुत ही बेताब हो चुका हूँ। तो वहाँ से हम जाएंगे रूम में और फिर 2 दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स करने का ही प्लान है। तो आज सैटरडे और संडे हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स ही करें, साइकिल से थोड़ा बहुत ही घूमेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और मंडे को वापस बैक टू मुंबई। तो ये रफली हमारा प्लान है। तो अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैथिली की शॉपिंग क्या चल रही है। ये देखिए मैथिली कोणतं घेतलंस? त्यांच्याकडे असं स्लीवलेस टाईपचं हां, हे असं चांगलं काही इथे आहे ना टी शर्ट्स, हाफ शर्ट्स। हे चांगलं चलो मैथिली को उसके फेवरेट टॉप्स लेने दो, हम लोग बाहर देखते तब तक। ये एक छोटी सी सुनसान शांत गली है। यहाँ की छोटी छोटी गलियों की भी एक ख़ास बात यह है कि रूरल गांव का आपको एहसास देती है। छोटे छोटे घर, क्वाइट नेबरहुड और सब जगह ग्रीनरी। इस गली में अंदर एंटर करते ही मुझे शांति का एहसास हुआ। देखिए, आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम नए होटल में जाने वाले हैं। तो उस होटल का नाम है होटल कम रिजॉर्ट, उसका नाम है ट्री हाउस सोनेट। और उसकी जो रूम है वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ उस रूम का व्यू। अभी हम लोग उस रूम के अंदर हैं। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको ये तो ये हमारे रूम का व्यू है और ये है बेड।
तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के ही हम लोग ये नज़ारा देख सकते हैं। और इतनी ह्यूज विंडो, तो ये अभी अभी उन्होंने हमें खोल के दी है। ये अगर बंद की जाए और कर्टन्स ऑफ किए ऑन किए बंद कर दिए तो फिर हम एसी ऑन कर सकते हैं। अभी ये क्योंकि हमने खोला है गार्डन व्यू, इसलिए हमने एसी ऑफ करके रखा है। और ये हमारा प्राइवेट गार्डन है, यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय कॉफ़ी या डिनर लंच जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेड, और वहाँ एक छोटा सा मिनी सोफ़ा है जहाँ पे मैथिली बैठी है, वहाँ पे टीवी है, और ये हमारा ज़बरदस्त सा विंडो। ऐसी रूम एक्चुअली कहा जाए तो मैंने कभी ऐसे रूम में मैं रहा नहीं हूँ जो ऐसे फुल कंप्लीट सीलिंग हाइट तक बड़ी विंडो है। ये हो गया बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सबसे मेन ये एरिया, बाजू में भी एक दूसरी रूम है, तो शायद ये गार्डन हमारा शेयरिंग है। यहाँ से उन्होंने बाउंड्री बना दी है, तो ये उनका गार्डन स्पेस है और ये हमारा। ये मेन एंट्रेंस है, गेट, यहाँ से हम लोग अंदर आए थे। और वैसे ये देखा जाए तो अंजुना बीच से काफ़ी दूर है, तो एक गांव के अंदर ही है, तो काफ़ी शांत सी जगह है और ज़्यादा चहल पहल नहीं है और माहौल भी बहुत शांत है। जनरली टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे बीच वगैरह हो गए तो वहाँ पे बहुत घाई गड़बड़ और पब्लिक का केओस, गाड़ियों की, व्हीकल्स की हॉर्न्स, वो सब होता है। यहाँ पे अभी वो कुछ नहीं है, बहुत ही शांत है। ट्रैवल लॉग के दौरान मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा प्लान कुछ भी नहीं है, हर प्लान हमारा आगे आगे बनते जाता है। तो अभी तक का प्लान तो ये रूम थोड़ा एंजॉय करेंगे, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। अगर लगा तो शाम को किधर साइकिल पे घूमने निकल जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। और कल हमारा गोवा में आखिरी दिन है, कल भी थोड़ा बहुत साइकिल से हो सकेगा तो आसपास की जगहों पे घूमेंगे। हम लोग सोच रहे थे आयुर्वेदिक मसाज लें, लेकिन गूगल पे मैं ढूंढ रहा था तो उसका ढंग का कुछ मिल नहीं रहा था। लास्ट ईयर हम लोग जो पालोलिम बीच गए थे तो वहाँ हमने जो मसाज लिया था उस मसाज का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि गोवा में कभी मसाज नहीं लेंगे। बात ये हुई थी कि वो जो मसाज उन्होंने दिया था आयुर्वेदिक के नाम पर, उन्होंने एल्बो वगैरह ऐसा लगा के हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इतना घिसा था, इतना पेनफुल मसाज था। और उनका कहना ये था कि वो मसाज पेनफुल ही होता है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन साइंस ऑफ मसाज, तो मैं कह नहीं सकता कि क्या वो सही तरीका था या गलत तरीका था। बट मैथिली मेरी वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट है और उसने कहा कि ऐसा कोई भी थेरेपी या मसाज होना नहीं चाहिए जिससे बॉडी में पेन जनरेट हो। तो वो मसाज के बाद 2 दिन के लिए हमारे बॉडी के मसल सारे पेन कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो दैट वाज द राइट वे ऑफ डूइंग मसाजेस। तो खैर मैं ऐसा नहीं बोलता कि उस मसाज की वजह से गोवा में सारे मसाज सेंटर वैसे होंगे, बट देखते हैं हम लोग। प्लान तो हमारा था कि रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मसाज लेंगे, बट अगर कोई अच्छा ढंग का वेल रिव्यूड मसाज सेंटर मिलेगा तो हम देखेंगे। तब तक के लिए अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। बाय। हाय। तो आज संडे है और हमारे ट्रिप का वैसे देखा जाए तो आज आखिरी दिन है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पूरा आराम करेंगे, जम के आराम करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, सुबह आराम से उठे, होटल में ही जो ब्रेकफास्ट था वो जो सर्व किया जाता है वही ब्रेकफास्ट किया और बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट था। सिंपल था, पूरी भाजी, ऑमलेट, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी, जूस, ये सब था। और जो पूरी भाजी थी वो बहुत ही अच्छी थी, एकदम ही टेस्टी थी और अच्छी तरह से बनाई थी। सिंपल थी लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से बनाई थी। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, रूम पे आए और मोबाइल पे थोड़ा टाइम पास किया, बाहर बैठे गार्डन में। फिर यहाँ पे ऐसा सो के मोबाइल देख रहे थे, बाद में आराम से हम लोग सो गए। और जो सो गए वो हम लोग दोपहर को 2 बजे उठे और अभी बजे हैं 3:30। तो अभी थोड़े पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमने सोचा कुछ खाया जाए। फिर हम लोग देख रहे थे कि नियर बाय कौन से रेस्टोरेंट है जो अभी ये टाइम पे खाना सर्व कर सकते हैं। प्रॉपर मील भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ भी डिशेस मिल सकते हैं तो देखेंगे। तो हमने हिमांशु जिससे हमने साइकिल रेंट पे ली थी उसको भी कॉल किया। उसको बोला हमने कि हम लोग आते हैं 1-2 घंटे में और साइकिल रिटर्न करके ही जाएंगे। तो प्लान ये है कि आज क्योंकि कल की हमारी फ़्लाइट है बैक टू मुंबई की,
तो आज हम अभी जहाँ से उसकी साइकिल रेंट की थी वहाँ पे जाके उसको साइकिल दे देंगे, कुछ खा लेंगे और रात का डिनर करके ही हमारे रूम पे आएंगे। और कल सुबह यहाँ से 10 बजे का चेकआउट है, बट हमारी जो फ़्लाइट है वो 1:15 बजे की, 1-1:30 बजे की है, 1:15 की कुछ तो है दोपहर की। तो और एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, आई थिंक 30 to 40 किलोमीटर्स है, तो 1-1.5 घंटा लगता है। तो उस हिसाब से हमें शायद सुबह 9:30 या 10 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा कैब करके। तो हम आज ही सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर देंगे, जो भी पेमेंट्स रिलेटेड है, जो भी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा वो आज ख़त्म कर देंगे। और साइकिल का भी अभी हम जा ही रहे हैं रिटर्न करने। तो चलिए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम लोग रूम से निकल चुके हैं और रूम से मतलब जो मेरा होटल है, होटल ट्री हाउस सोनेट, और वहाँ से ये जो रास्ता है ये काफ़ी अच्छा रास्ता था। कल रात को हम जब डिनर के लिए निकल गए थे तो हम लोगों ने साइकिल्स भी नहीं ली थी, इनफैक्ट हम लोग चल के आ रहे थे और बहुत ही अच्छा नाइट वॉक था ये रास्ते पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी कम है, ज़्यादा नहीं है, तो एकदम शांति से सुकून से 2 किलोमीटर का वॉक था, क्योंकि यहाँ आसपास इधर नज़दीक कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो थोड़ा मेन रोड पे बाहर जाना पड़ता है और फिर वहाँ से आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। तो कल रात को ये पूरा रास्ता हम लोग चल के गए थे और वहाँ से फिर खाना खाने के बाद वापस हम शांति से चल के आए और अच्छा वॉक एंजॉय किया। तो अभी यही रास्ता है जिस पे हम लोग साइकिल चला रहे हैं। यहाँ से मेन रोड पे जाएंगे, यहाँ एक लेक है नज़दीक, ये देखिए, ये लेक के उस तरफ एक रेस्टोरेंट है, लेक व्यू रेस्टोरेंट करके, और यहाँ पे भी खाना मिलता है रात का। आई थिंक मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स अभी बंद हो चुकी होंगी, जैसे उनका लंच टाइम बंद हो चुका होगा, तो हमें मेन रोड और मेन मार्केट की तरफ ही देखना पड़ेगा। सुंदर सा लेक है और ये वो लेक व्यू, सॉरी फाउंटेन व्यू, ये उस रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है। तो आप पीछे देख सकते हैं, मैथिली भी आ रही है। तो आज का प्लान यही है कि साइकिल रिटर्न करेंगे और मेन रोड पे या मेन मार्केट की तरफ ही देखेंगे कोई रेस्टोरेंट है क्या जो अभी 24 आवर्स खाना सर्व करता है, और कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और उधर ही टहलेंगे थोड़ा, और शाम का डिनर करके ही वापस लौटेंगे, ऐसा प्लान है। डेफिनेटली ये सब गांव के रास्तों को हम लोग मुंबई जैसे घने आबादी वाले शहर में मिस करने वाले हैं। तो लेकिन फॉर टाइम बिंग कुछ समय के लिए तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए इनफ होगा, फिर कुछ टाइम बाद निकल जाएंगे ऐसे ही। जब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी हम लोग मुंबई के बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं साइकिल रिटर्न करने जाने वाला हूँ, तो हिमांशु जिनसे मैंने साइकिल रेंट पे ली थी उनके पास हम लोग आ चुके हैं। तो उनके वर्कशॉप में मैं खड़ा हूँ। अभी मैं कुछ थोड़ी सी बातचीत मैं हिमांशु के साथ करूँगा और हिमांशु हमें बताएंगे कि उन्होंने ये वर्कशॉप का आइडिया कैसे आया, वो कब से यहाँ पे साइकिल रेंटिंग कर रहे हैं। तो चलिए कुछ बातचीत करते हैं हिमांशु के साथ। हेलो। तो ये आपका जो नाम है पहिया, ये नाम कैसे आया और उसके पीछे क्या फिलोसफी है? सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैं काफ़ी साइकिलिंग किया करता था। हाँ। एंड वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ ब्लॉग अबाउट राइटिंग माई साइकिलिंग स्टोरीज एंड एवरीथिंग। ओके। दैट टाइम I asked suggestions from so many friends. They suggested so many English words, and then my English is not so good. So मैं हिंदी English mix कर देखता था, and there are a lot of names came related to wheels, और फिर उसके बाद सबने बोला हिंदी वाला फील होना चाहिए। पहिया एक वर्ड है, इसका मतलब व्हील होता है, चक्का, और वो इट मीन्स कि वो घूमते रहे, और मैं हमेशा घूमता रहता था। हाँ। सो द पहिया नेम कम्स। तो जैसे आपकी लाइफस्टाइल है यहाँ से वहाँ घूमना, और घूमना आपका पैशन है, तो इसीलिए पहिया। या
ओके और आप कहाँ से, आपकी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट में बताइए ना, आप कहाँ से हैं, यहाँ गोवा में कैसे लैंड हो चुके? सो मैं हूँ बिहार से हाँ एंड मेरी फैमिली सेटल्ड अहमदाबाद में है ओके एंड मैं यहाँ पे साइकिलिंग करते करते ही आया था घूमने के लिए एंड समवन हैड आई वर्क इन सम टाइम फॉर अ साइकिलिंग इंडस्ट्री अच्छा with a friend and then I thought it's a good place to start something your own and then I started renting cycles from in 2017 ओह तो अभी आप परमानेंटली गोवा में ही सेटल्ड हो? ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे और यहाँ से आप खुद भी, जैसे आपने बोला था, आप खुद भी साइकिल के ट्रिप्स अरेंज करवा के देते हो ना, लोगों को ट्रिप पे लेके जाते मैं हो? यहाँ पे डेली साइकिल टूर्स कराता हूँ विद इन गोवा और लॉन्ग ट्रिप्स भी कराता हूँ, लाइक किसी को बॉम्बे टू गोवा करना है, किसी को गोकर्णा तक जाना है, हाँ 2-3 डेज का ट्रिप करना है तो वो भी मैं कराता हूँ यहाँ। ओके मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा था, तो ब्लॉग में मैंने आपके स्पीति वैली के फोटोज़ देखे थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? साइकिल मेरा अभी तक का सबसे एडवेंचर ट्रिप था जिससे मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन का मैंने सोचा था, बट ये ऑलमोस्ट मुझे 1-1.5 महीना लगा वो पूरा पैच करते करते। अच्छा और काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप था वो मेरा। तो वो आप किसी ग्रुप के साथ है या ऑन योर ओन? अच्छा अकेले ही गए थे? और फिर कैसे टेंट में? 700 या 600 साइकिलिंग किया था मैंने। अच्छा और कहीं साइकिल्स डैमेज हुए थे, हिचहाइक भी किया था मैंने। हाँ सो और डेली कैसे कैंप में रहते थे या वो जो ढाबे रहते थे में वैसे? स्टे करता था और या फिर लोकल्स के यहाँ पे अच्छा होम स्टेज वगैरह। ग्रेट ग्रेट। जैसे हम लोग साइकिल एंथुजियास्ट है, तो हम लोगों को कोई भी सिटी से समझो गोवा में आना है और गोवा में साइकिलिंग हॉलीडे अगर एंजॉय करना है तो आप कैसे अरेंज कर पाएंगे? मतलब आप एयरपोर्ट पे या फिर मडगांव स्टेशन पे साइकिल मिल जाए, ऐसा कुछ है क्या? सो मैं Breakdown हो जाए साइकिल। गोवा में एंटायर गोवा में साइकिल डिलीवर करता हूँ, जहाँ पे भी चाहिए मैं साइकिल्स डिलीवर करा देता हूँ और मैं कस्टमाइज टूर्स भी कराता हूँ डिपेंडिंग किसको कितने दिन के लिए साइकिलिंग करना है तो उसके हिसाब से डे वाइज। फॉर एग्जाम्पल किसी को 200 किलोमीटर करना है, 4 दिन का ट्रिप करना है तो मैं यहाँ से गोकर्णा लेके जाता हूँ, या किसी को 5-6 दिन का करना है, किसी को सिंगल डे भी करना है। सो वी हैव डिफरेंट टूर्स एज पर कस्टमाइज्ड पैकेज। कस्टमाइज्ड पैकेज बेसिकली। तो ये जो वर्कशॉप आपने बनाया वो आप और आपके दोस्तों ने मिलके बनाया या आपने अकेले ने किया? सो मैं मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर के बनाया। ओके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गया अभी तक। नाइस। ट्राई तो जैसे अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं जब आया तो हिमांशु अभी यहाँ पे कुछ कारपेंटिंग का काम कर रहे थे, खुद ही काट रहे थे, तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी क्या क्या कर सकता है। साइकिल्स भी मेंटेन कर रहे हैं, कारपेंटिंग का काम भी कर रहे हैं, सब अकेले सिंगल हैंडेडली वो मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मिल के बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नया कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं तो 9 to 6 जो डेली रूटीन में करते रहते हैं उससे अलग कुछ आप कर रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच। ये था हिमांशु का वर्कशॉप पहिया। और कभी आप भी अंजुना की तरफ आएंगे तो अंजुना या गोवा में कहीं, गोवा में भी आपको साइकिल ट्रिप करनी होगी तो कभी भी आके आप हिमांशु से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय। तो अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट की खोज में जिसका नाम है करलीज। और ये रेस्टोरेंट का सजेशन हमें मिला है जहाँ हम खाना खाने हमेशा जाते हैं, जो एक रमेश अंकल करके हैं, उनके घर पे ही हम लोग बहुत टाइम के लिए डिनर खा रहे थे, उनका होम कुक्ड फूड। शाम को मैं उनका घर दिखाऊंगा और उनसे मिलाऊंगा आपको। बहुत ही प्यारी फैमिली थी, उन्होंने घर का खाना हमें सर्व किया था, नॉनवेज फूड। तो आज हम उनसे मिलने गए थे जब साइकिल रिटर्न करने गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि रात का खाना आप हमारे इधर ही खाओ, अभी किधर खाना है तो एक करलीज करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके आओ। तो वो रेस्टोरेंट का जो रास्ता है वो ऐसा छोटी छोटी गलियों से जा रहा है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो हम चल के जा रहे हैं, साइकिल हमने रिटर्न कर ली है ऑलरेडी, अभी चल के हम वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते ये बीच आ गया आई थिंक सो। अभी हम बीच पे ही शायद खाएंगे कुछ, करलीज करके जो रेस्टोरेंट है उसमें। ये ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं जिससे हम चल के जा रहे हैं। आधी काहीतरी बसून तो खाऊया। ताई करलीज कुठे आहे? करलीज स्ट्रेट, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सामने समुंदर दिख रहा है। तो फाइनली उस दिन भी हम लोग अंजुना बीच की तरफ आए थे, लेकिन हमने बीच ऐसा देखा नहीं था। तो आज हम लोग बीच भी प्रॉपरली देखेंगे, समुंदर की तरफ देख के कुछ स्नैक्स का आनंद लुफ्त उठाएंगे। बहुत ही शांत जगह है ये अभी। वैसे मैंने सुना था अंजुना बीच काफ़ी कमर्शलाइज्ड है। हाँ
अब पता नहीं. हे कर्लीज कुठे? कर्लीज कुठे आहे? कर्लीज हेच आहे. अच्छा ह्याच्या पुढचं. हां नाही वाह. हां हे मैथिली वरच्या अपर डेकवर पण आहे. हेच कर्लीज आहे. तो हम लोग कर्लीज आ चुके हैं. और हमारी डिशेस भी आ चुकी हैं. मैथिली का मिल्क शेक और मेरा ऑरेंज जूस. तर हे आहेत रमेश अंकल आणि ही त्यांची फॅमिली. तुम्ही इंट्रोड्यूस करा ना. हॅलो, माझं नाव रमेश कांबळी आहे. हां मी अंजुना इकडं माझं बालपण पण इकडंच झालं आणि हे माझं सगळं काही या रेस्टॉरंटमध्ये झालं. फिलॉसॉफी म्हणजे काय आहे ना, हे रेस्टॉरंटलेच मला माझ्या सगळ्या कुटुंबाला सपोर्ट, त्यांना वर करायला शिक्षण काय झालं ते या रेस्टॉरंटनेच दिलं मला. आणि माझ्यासाठी म्हणजे माझं सगळं जग इकडं आलं माझ्यासाठी. आणि येस, आणि मी जग इथूनच पाहिलं. हो. येस, तुम्ही मूळचे इकडचे आहेत ना? मी मूळचा गोव्याचा. अच्छा. माझा जन्म पण माझी आई वडील इकडेच गोव्याचे. आणि त्यांचं सगळ्यांचं हे जे आमचं, मी कुठं नाही म्हणजे युरोप म्हणजे कुठंच म्हणजे भारताबाहेर कुठंच गेलो नाही, पण मी सगळं जग इथूनच पाहिलं. हा म्हणजे जेवढे सगळे टुरिस्ट आले भेटायला जेवढे त्यांच्याकडून सगळे जग टुरिस्ट आले त्यांचं कल्चर बघितलं, त्यांचं हे ते सगळं म्हणजे इथूनच बघितलं. जेवणाची तुमची क्वालिटी आणि चव एवढी जबरदस्त कशी असते, त्याचं काय गुपित आहे? सिक्रेट काय गुपित व्हॉट इज द म्हणजे सिक्रेट? सिक्रेट म्हणजे तुम्ही जेवण करायला तुम्हाला म्हणजे जेवणाबद्दल प्रेम पाहिजे. करेक्ट, बरोबर. आणि करायचं म्हणजे ते तुला प्रेम पाहिजे म्हणजे करून दुसऱ्याला द्यायचं. हां ते प्रेम म्हणजे असं नाही की तुलाच पाहिजे ते ना, म्हणजे दुसऱ्याला करून द्यायचं आणि ते चांगलं. बरोबर. असं नाही की मी पैसेच घेतले आणि तू जेवण दिलं. नाही. इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल्सो. करेक्ट. आणि जवळजवळ किती वर्षापासून तुमचा हा बिझनेस चालू आहे? 91 पासून हे जेवणाचं सगळं चालू आहे. आणि डिनरच ठेवता तुम्ही जनरली? लंच अँड डिनर. तुमचा आतापर्यंतचा अनुभव कसा आहे? मॅनेज कसं करता एवढं सगळं म्हणजे चवदार जेवण आणि हे सगळं कसं मॅनेज करता? मॅनेज म्हणजे काय असतं माहिती आहे, सगळं तोच प्रोव्हाइड करतो ना, मी फक्त तयार करून देते. अच्छा. हो. पण हाताची चव तर तुमच्याच आहे ना? माझ्यात जरी असली तर ताज्या मासे वगैरे तो आणून देतो ना. त्याच्यातच सगळं हे आहे. मी फक्त बनवून देते एवढंच. पण आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे आम्ही जेव्हा पण आलो ना त्याच्यानंतर आम्हाला सारखं असंच वाटतं की हॉटेलांमधलं आपण खातो, पण जे घरगुती जे जेवण त्याची जी चव असते ते इकडे आल्यावरच मिळते. मी आता दुपारी पण आलो तेव्हा काकांना म्हणत होतो की ही 2 दिवसापासून म्हणते आपण परत तिकडे जाऊया जेवायला. तर तुमच्याकडे आम्हाला यायला परत खूप आवडेल. थँक्यू. जे कोण आमचे व्ह्युअर्स आहेत त्या सगळ्यांना मी सांगेन की इकडेच या जेवायला. थँक्यू. तर ही खूप सुंदर आणि प्रेमळ फॅमिली आहे. तर नक्की तुम्ही अंजुना बीचच्या जवळपास आलात तर ह्यांच्याकडे जेवायला आहे. ह्यांचा मी ॲड्रेस आणि एक्झॅक्ट नंबर वगैरे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नंतर दाखवेन. थैंक यू बाय. आज मंडे है, मंडे की सुबह हो चुकी है और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, सारा सामान भी पैक हो चुका है.
और अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। वैसे फ़्लाइट हमारी दोपहर के 1:30 बजे की है, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, हम नहीं चाहते कि वो सीन दोबारा हम दोहराएं। तो इसलिए हम लोग अभी आज आता कितने बजे? हाँ 10 बजे है और कैब ड्राइवर भी रेडी है बाहर। हम लोग सामान लेके अभी निकल जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकता है एयरपोर्ट पहुंचते टाइम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक जैम होता है। और एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर है यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 किलोमीटर्स है। तो चलिए अभी निकलते हैं और जाते टाइम थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊँगा। अभी वैसे देखा जाए तो व्लॉग की एंडिंग ही होने वाली है कुछ टाइम में, तो जाते जाते थोड़ा जितना हो सकता है उतना मैं दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुके हैं और अभी फ़्लाइट के लिए वेट करेंगे। सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो चुका है, वी आर वेल विद इन टाइम। और हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने ख़तरनाक स्पीड से शूमाकर की तरह गाड़ी चलाई और एट टाइम्स हमें ऐसा लगा कि उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा स्लो डाउन करे, लेकिन वो वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंट था। बट अच्छे तरह से गाड़ी उसने स्पीड से लेके फटाफट हमें पहुंचा दिया एयरपोर्ट पे। और हम काफ़ी अच्छा कितनी बजे? 12 बज चुके हैं और 1:15 की हमारी फ़्लाइट है। और हमारा गेट वहाँ पे गेट सी करके है वहाँ पीछे, लेकिन ये जो एरिया है वो काफ़ी शांत और कोई क्राउडेड नहीं था और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू सामने दिख रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ बैठते हैं। डिपार्चर्स मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तब मैं सोच रही थी कि अभी रो आगे दूँ कब जाना होगा, अभी रो पड़ती हूँ, इधर कब जाना होगा, वो मैं सोच रही थी। किधर जाना? वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। क्या किधर जाना है अभी आगे? पता नहीं, वापस से मैं रोऊंगी, फिर कुछ होगा फिर हम लोग आ जाएंगे मेरे पास बहुत बहुत अच्छे कारनामे हैं कि जिससे तरकीबें हैं जिससे मैं नई ट्रिप शुरू कर सकती हूँ। जैसे साइकिलिंग की ट्रिप थी तो बहुत अच्छा लगा, और जैसे नॉर्मल बाइक राइड और कार से जाना होता है, हाईवे पे चलना होता है या फिर होटल में रहना होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे सिंपल इंडियन विलेजेस में ट्रैवल करना और ऐसे लोगों से बात करना, ये सब अच्छा लगता है। तो ये सब बहुत हुआ इस ट्रिप में, तो जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही हो गया। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम रिटर्निंग बैक विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। इस सीरीज़ को मैं इधर एयरपोर्ट में ही एंड करना पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ से आगे फ़्लाइट में बैठने के बाद फिर तो मुंबई की भीड़ और धुआं है ही, तो वो दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ दिस ट्रैवल सीरीज़ और होप आप लोगों को ये पसंद आए और जल्द ही एडिट करके सारे एपिसोड्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो और उसके बाद हमारी जो यूरोप बाइसिकल टूर थी लास्ट ईयर की, उसके भी एपिसोड मैं धीरे धीरे करके एडिट करके आगे डालना चालू करूँगा। सो वॉच आउट फॉर इट। ओके, बाय।